Welcome to Buddha International TV. Today, Global Peace and Health International celebrating Gandhi Jayanti. According to United Nations General Assembly, this October 2nd is identified and observed as the Day of Non-Violence. So, to promote the non-violence, the Global Peace and Health International started celebrating this day as Non-Violence Day. We know that the father of the nation, India, okay, with respect to India, Mahatma Gandhi, played very important role in the freedom movement. He experimented Satyagraha in the South Africa and returned to India in 1915. From that day onwards, with respect to Home Rule movement, or come to Khilafat movement, non-cooperation movement, or come to Simon Gobek movement, or come to civil disobedient movement, or Quit India movement. So the entire episode dedicated to Gandhian era we can call, because Gandhi played very important role in that period, particularly in the freedom movement. So today is 151st birth anniversary of Gandhi, and today also the birthday of the second Prime Minister of India, who is that Lal Bahadur Shastri. After Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, and Lal Bahadur Shastri's birthday also the second Prime Minister of India. So welcome to Buddha International TV show. In today's discussion, we have important personalities participating from different countries. Today, Dr. Ramakrishna Shah, who is UN representative and President of Human Rights Council of America, and the President of Global Peace and Health International, Texas, USA, and Global Unani Medicine and Research Foundation President, participating in today's program. Welcome to the show, sir. Other guests include Padma Shri, Dr. Vijay Kumar Shah, former health advisor to the Government of India and a social worker for more than a half a century, also participating in today's program to celebrate the Day of Non-Violence. Welcome to the show, sir, Dr. Vijay Kumar Shah. Namaste. Other important personality, we know Bharat Ratna, Madan Mohan Malaviya, and their family member, Shruti Malaviya, one of the great singers in India, also participating in today's program. Welcome to the show, ma'am. We know that best dancer in classical in India, as well as come to in the United States of America, the Western dancer. So she experimented classical dance with Western dances and combined the Western dances, and right now giving training to the students from Chicago. She is none other than Ms. Alokita Dhar, one of the best dancers. Welcome to the show, ma'am. And Mr. Ramakrishna Aryal, also participating from United States of America. Welcome to the show, sir. Ma'am, Anika Dubey, also participating. Welcome to the show, ma'am. To celebrate this, the Day of Non-Violence, you are participating with Global Unani Medicine and Research Foundation, as well as Global Peace and Health International. Welcome to the show, ma'am. Other important guests also participating, like
Pavitra Bhandari, please switch on your video, ma'am. Pavitra Bhandari, ma'am, please switch on your video, and she is also participating from India. Welcome to the show. Now I'm requesting Dr. Ramakrishna Shah to share his valuable message to our viewers on this very important day, the day of non-violence. Yes, sir. Thank you very much, Dr. Bhara. Today is the feast day because this day is the we conducting program for Buddha International, and Buddha is also peace people in the world, and Gandhi also, and so this is the greatest day today, and we participated all the best people in the India, all over the world. So so I'm so happy today, and we enjoy a lot of dance, bhajan, Sanskriti bhajan. So this is different language bhajan, dance. So they have, this is a nice thing. Kavita also. So this is the nice thing, and this all are our family. Not I do not see other people, new people. So I'm so happy with our all the people. And today I have some meeting for council member meeting also. So sorry for that, because I'm going to 9 p.m. Council member meeting. So so 9 a.m. because here today this time is 8:45. And after few minutes, so I'm leaving, maybe 1 or 2 dance or Shruti ma'am bhajan I'm participate, and then I'm leaving. So और बहुत खुशी की बात है कि आप हम लोग जो है ऐसा मौका पर हम लोग आए हैं, और ये मौका तो बार बार नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जो है अभी तक जो इसके लिए मेनका जी को धन्यवाद देंगे, उनको वो एक दिन पहले बोले, हम लोग तो माइंड में भी नहीं था कि गांधी जयंती हम लोग मनाएंगे या नहीं मनाएंगे। वो फोन करके कही कि अभी तो गांधी जयंती मनाना है, तो एकाएक हम लोग का ध्यान जो गांधी जयंती, और एक दिन के भीतर में हम लोग, क्योंकि हम लोग तो वेल प्रिपेयर लोग हैं, सभी चीज हम लोग के पास में है, तो हम लोग को ज्यादा टाइम भी नहीं चाहिए। आधा घंटा भी कोई आगे बोल देता है तो हम लोग शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने लोग अपने पास सिंगर है, अपने पास डांसर है, अपने पास पंडित जी है, अपने पास पद्मश्री भैया जी हैं, तो किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो हम लोग जो किए, और बहुत खुशी की बात है। और अमेरिका से ही 3 आदमी हैं अभी, रामकृष्ण अरियाल हमारे भाई हैं, अनिका जी हैं, और इंडिया से तो और धीरे धीरे आ ही रहे होंगे, कई आदमी के पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो है ये हम लोग गांधी जी, संसार में गांधी जी का भी, अमेरिका में गांधी जी का स्टेचू है, अमेरिका में गांधी जयंती मनाया जाता है। हम देखे थे कल की परसों यहाँ पर जो है यहाँ के जो FIA वाले लोग सो गांधी जयंती मनाया, तो हम लोग इंडियन के लोग और नेपाल के लोग क्यों नहीं मनाएंगे? जो अच्छे लोग हैं उन लोगों का हम लोग जो है प्रोत्साहन करना चाहिए, उन लोगों का बात जो उसका सिद्धांत को हम लोग को लागू करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज जो है हम चाहेंगे कि श्रुति मैम पहले ही अपना प्रोग्राम भजन से शुरू करें, क्योंकि हमारे बहुत बड़े हमारे सिस्टम के बहुत आदरणीय है, और भैया जी हैं पद्मश्री, आलोकिता जी है, रामकृष्ण जी है, और हमारे जो है अनिका जी है, जो बहुत बड़ी हिंदी का प्रोग्राम यहाँ पर चलाती थी। तो ये सभी लोग हम देखते हैं, सभी लोग बड़े बड़े लोग हैं इसमें, तो और सभी हम लोग बाहर के लोग नहीं है, सब हम लोग एक फैमिली है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि भाषण भूषण कम और गीत डांस ज़्यादा हो, और ये शुरू करें। जितना हो सकेगा हम देख पाएंगे, बाकी नहीं हो सका तो 9 बजे के बाद जो हम जो है वीडियो से देखेंगे। और आज देखिए कि आज ही के दिन में क्या था, नेट भी काम लाइव नहीं हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड भर में UN का असेंबली भी अभी है स्टार्ट है, इसके बाद में स्टेट का भी हर जगह मीटिंग है, तो हो सकता है इसीलिए इंटरनेट और यूट्यूब नहीं काम कर रहा हो। तो ये अभी हम लोग इसको बाद में रिकॉर्ड करके लाइव करेंगे। तो और आप लोग अपना
ये जो है आप लोगों का ये जो आप लोग जो गीत गाएंगे, जो डांस, वो यूनाइटेड नेशन में, WHO में प्लस जो है स्टेट में जाएगा, लोग देखेगा। हम लोग यहाँ के एम्बेसी में भेज देते हैं, 2-3 एम्बेसी में भेजते हैं, तो वो लोग देखता है तो बड़ा खुशी भी होता है, तो बहुत खुशी की बात है। ओके डॉक्टर भारा, Yes, sir. if possible, Hmm. first we want to bhajan for Shruti ma'am, if possible, Yes, definitely. and then slowly, because Shruti ma'am is the biggest singer in the television. So this is our television. Yes. Buddha International is our television. So thank you very much, Dr. Bhara, Yes, sir. conducting such type of program. Thank you very much. Okay. Thank you very much, Dr. Ramakrishna Shah, sir. And yes, based on the wishes of Dr. Ramakrishna Shah, now we are starting the journey with Shruti ma'am. So yes, ma'am, please unmute your phone. And so today is the day of non-violence, a peace day. So, okay. Yes, ma'am. भारत ये भजन गांधी जी का बहुत प्रिय भजन है, वैष्णव जन तो तैने कहिए। और ये नरसिंह मेहता जी ने 15वीं शताब्दी में गुजरात के ये बहुत एक स्पिरिचुअल, एक भक्ति साहित्य के कवि थे, और उन्होंने लिखा है। मूल रूप से गुजराती का है ये, लेकिन इसका चूँकि हिंदी भी अनुवाद कर दिया गया है, तो ये भजन बहुत पॉपुलर है और ये सबको बहुत पसंद है। और गांधी जी का विशेषकर ये प्रिय भजन था, और रोज़ प्रार्थना में वो इस भजन को जरूर कहते थे अपनी प्रार्थना में। तो ये मैं इस भजन से शुरुआत करना चाहती हूँ। वैष्णव जन तो तैने कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने बंदे, निंदा न करे के नीरे। काछ बाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी के नीरे। वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे। जिव्या थकी असत्य न बोले, जिव्या थकी असत्य न बोले, पर धन दम झाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तैने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। मोह माया व्यापे नहीं जेड़े, दृढ़ वैराग्य जिणा मन मारे। राम नाम शु ताली लागे, सकल तीरथ तिना तन मारे।
वैष्णव जन तो तेने कहीं से पीड़ पराई जाने रे। बड़ लोभी ने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे। घड़ी नरसिंह तेनु दर्शन करता पुर एको तेरो तारा रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए छे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखी उपकार करे तो ये मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कही छे पीड़ पराई जाने रे। Excellent, excellent, ma'am. And thank you very much, ma'am. Because MK Gandhi like this type of bhajans very much. So on his birth anniversary day, and we are giving our tributes to and our thanks to, okay, and we are saluting to each and everything to MK Gandhi, the father of nation that is in India. Thank you very much, ma'am. Now I'm requesting ma'am Anika Dubey, please give your valuable message to our viewers. And before that one, thank you very much, Dr. Ramakrishna Shah sir. And I think Yeah. now you have So, to go the meeting to the council so member. Dr. Bara, Yes, I'm sir. going to council meeting. Yes, yes, So sir. now our meeting Yes, sir. only 5-minute time. Yes, sir. So thank you very much. एंड आई विल वॉच। और सभी जितने आदमी हैं सब अपना फैमिली मेंबर है, ये हम तो फिर रिले करके देख लेंगे। और सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और फिर हम लोग जो है मिलेंगे और फिर आप लोग अच्छा से सेलिब्रेशन करें। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर भारा, थैंक यू वेरी मच श्रुति मैम, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विजय भैया जी, थैंक यू वेरी मच अलोकिता धार, थैंक यू वेरी मच रामकृष्ण रयाल, थैंक यू वेरी मच पवित्रा भंडारी, एंड थैंक यू वेरी मच अनिका दुबे जी। और जितने भी आदमी सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आपका जाना लेकिन प्रोग्राम से जैसे लग रहा है आत्मा का चले जाना है। क्या करें, काउंसिल भी बहुत बड़ा है ना यहाँ का, स्टेट का। Yes, sir. Thank you very much, sir. And we'll record this program and we'll telecast, sir. Thank you. Thank you very much for participating in today's program, sir. Thank you, Dr. Shah, for taking my suggestion and organizing this program today. Thank you. आप ही के तो आप नहीं बोलते तो ये भी नहीं होता ना। Thank you so much. I'm obliged. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. So I'm requesting Anika, ma'am. So sure. Thank you, Dr. Vara. Thank you to you once again. In the short notice, and I just kind of suggested because Buddha International TV has been organizing so many programs, and I was like, we should be organizing a program on Gandhi Ji's and Lal Bahadur Shastri Ji's birthday as well, because this is also like an International Peace Day for us. So having said that, just quick introduction for others who I have never met, like, you know, so I have been staying in Chicago for last 20 years. I'm working as a Chief Human Resources Officer for an IT company. And I have a lot of passion in promoting and preserving the cause of Hindi as a language. So here being in Chicago, I have been doing various activities to promote Hindi. So bas, then what I will do now, I'll speak in Hindi on this auspicious day of International Peace Day. तो मैं शुरू करती हूँ। मतलब मुझे सबसे पहले आज का दिन 2 अक्टूबर, ये हम भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हमारे 2 सबसे बड़े महान व्यक्तियों का जन्म हुआ था, जिन्होंने देश की आजादी और विकास में अपना अहम योगदान दिया। इसलिए यह दिन हमारे लिए दोहरे उत्सव का दिन है। We have double celebration today.
15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान दिया। गांधी जी ने दुनिया को दिखाया कि शांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। खाकी जिसकी पहचान है, कर्म ही जिसकी शान है, सत्य अहिंसा जिसकी जान है, हिंदुस्तान ही जिसका ईमान है। बापू के सपनों फिर से सजाना है, देकर लहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा लिया हमने आजादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है। गांधी जयंती की सभी को शुभकामनाएं। और जैसा कि मैंने कहा पहले कि गांधी जी के जयंती के साथ साथ हम देश के एक और महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी सम्मान देते हैं। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जो भारत की सच्ची भावना को दर्शाता है। लाल बहादुर शास्त्री के सार्वजनिक जीवन ने देश पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह जिस तरह से आम आदमी से जुड़े थे, उससे यह अद्वितीय थे। विनम्र, मधुरभाषी लेकिन एक मजबूत नेता लाल बहादुर शास्त्री ने मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में लाल बहादुर शास्त्री ने गृह मंत्रालय और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभागों को रखा। तो इनको भी नमन करते हुए मेरी एक कविता है जो मैं प्रस्तुत करती हूँ। ये छोटा कद महान व्यक्तित्व और जिगर में स्वाभिमान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। सादगी की प्रतिमूर्त तुम और भौतिकता से अनजान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। सन 65 की जंग हुई जो छुटने पे आया पाकिस्तान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। गुदरी के लाल नमन तुझे, नतमस्तक सारा हिंदुस्तान, मंत्र अनोखा दिया राष्ट्र को, जय जवान जय किसान। तो ये हमारे 2 महानुभाव थे हमारे देश के, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया देश के लिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इन दोनों को नमन करते हुए, इनकी आज जयंती मनाते हुए एक मैं अपनी आखिरी रचना प्रस्तुत करूंगी। वो है सभी शहीदों के लिए समर्पित। इबादत उनकी करो, इबादत उनकी करो, शुक्रिया उनका करो। हंसते हंसते जो तुम्हारे लिए खो गए, घर उनके सन्नाटे से भर गए। अनेक घर वालों की खामोश आंखें बोलती हैं, आंगन में उनके खामोशी डोलती हैं। इबादत उनकी करो, इबादत उनकी करो, शुक्रिया उनका करो। यादों से यूं ही ना उनको मिटा दो, शहीदों की कुर्बानी तुम यूं ना बर्बाद करो। कर्ज है सभी पर उनकी कुर्बानी का, सफेद चादरों में लिपटी उन लाशों का। इबादत उनकी करो, शुक्रिया उनका करो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वारा, फिर से मुझे आपको यहाँ पे मुझे आमंत्रित करने के लिए और आज इंटरनेशनल पीस डे मनाने के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड आई wish all of you a happy International Peace Day, and let us kind of pledge to kind of eradicate non-violence and have peace in the world. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. No doubt, let us say this Gandhian philosophy is very strong, and definitely everybody follows that one, because maybe in the early 20s, a different type of thinking. After coming to 40 years, a different type of thinking. But after becoming, let us say, senior citizen, every person in their lives must accept this non-violence method. So in that way, okay, today is our father of the nation's birthday, including, let us, our second Prime Minister of India, Lal Bahadur Shastri's birthday also. Now, salute to those great personalities, because today we are living in India with this much of freedom, means that credit goes to these great personalities. Okay, number of freedom fighters.
they lost their lives for getting the type of, okay, freedom to us. Anyway, we are saluting to all these great personalities. Thank you very much, Anika ma'am, for participating in today's program. Thank you. I would have to leave the meeting, Yes, Dr. Vara. I yes, have sir. an important office meeting. Thank you so much. Thank you. Nice. And right now I'm requesting Alokita ma'am, please unmute and okay, your program please, and your valuable words and sessions to our viewers. Thank you so much, Dr. Vara. Good evening, everybody. I would like to say that it definitely is a remarkable day in our history because Mahatma Gandhi ji actually taught all of us how to live in non-violence. That was introduced, how kindness and humanity was shown, that how strong it is in our life and how it brought us freedom in spite of every other possible things that was going on. So I think Anika ji said a lot of things, and with after a little, like she said about things, I'm going to present a I think this is an internet problem. So hello. yes, ma'am. I think maybe a network problem. Yes, continue. So I'm going to present before you a different kind of dance today. It is a more like entertaining dance Yes. because I've always shown classical dances. So I thought maybe today I can show you some Bollywood number. So I hope you all like it. So should I do it now, sir? Yes, ma'am. Okay, just 1 minute. I'm just. So you all can see me, right, sir? Yes. Okay, sir, 1 minute.
Excellent, ma'am. We have seen your programs in the classical dances, but this is the first time I'm watching your. Yes, yes. So I thought I'll show you something different. Yes. So that's why I thought of doing this. No doubt it is a peace day, so that's why, okay, this entertainment is important for us for maintaining the peace, as well as come to observe the non-violence also, because our emotions are actually dominating in the minds, and that is actually creating this type of problems. So that's why if we can maintain the peace of mind, and definitely everything is possible. So that's why that peace comes from, okay, definitely from the music as well as come to the dance. So Yes, that is what I have always said, that music is so much that connects with us. Like every one of us thinks that we want peace, and how to get peace is a big question. So at times, yes, music definitely is one way of getting connected to yes, peace. thank you very much, ma'am, for participating in today's work, and you perform very well, very well, very well. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Now I'm requesting Padma Shri Dr. Vijay Kumar Shah, and for more than half a century, sir is okay, a social activist, and who is a senior in almost all the respects. And for the last 9 months onwards, I'm okay, association with the sir, but I have seen for the last 9 months, okay, very cool. I think sir is actually following the non-violence method. So that's why, sir, please share your experiences as well as come to, okay, your views on this, the Day of Non-Violence observed by United Nations General Assembly. Yes, sir, Dr. Vijay Kumar Shah. So thank you. First of all, I will like to, मैं हिंदी में बात करूँ चलेगा? Yes, sir. तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, आचार्य विनोबा भावे, ये मेरे दैवत है। और महात्मा गांधी का जहाँ जन्म हो गया था पोरबंदर में, उस जगह भी मैं जाके आया हूँ। उन्होंने साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम और लास्ट डेट जहाँ होगी वहां तक जाके आया। माय रिलेशन, मेरे जो गांधी जी के साथ के संबंध है तो बहुत पुराने हैं। मेरे दादाजी तुकाराम गांधी, ही वॉज अ को-वर्कर। उन्होंने उनके साथ में बेलगाम में कांग्रेस हो गई थे, बेलगाम कर्नाटका में, तभी कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने सहभाग लिया था। फ्रीडम मूवमेंट में काम किया था मेरे ग्रैंडफादर ने, और मेरे ग्रैंडफादर के घर में गांधी जी आके गए हुए, उनका पद स्पर्श भी हो गया। बाद में उसके बाद में सब ऑल जो गांधी जी के मूवमेंट थे उसमें साथ में मेरे सब फैमिली जुड़ी हुई है। मेरी मदर है रतन भाई और माय फादर, वो दोनों ने भी राष्ट्र के लिए सत्याग्रह के लिए काफी काम किया है। मेरे बड़े भाई भी फ्रीडम फाइटर है। आई एम कमिंग फ्रॉम फ्रीडम फाइटर्स फैमिली। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आज महात्मा गांधी जी का हम जन्म दिन आखा वर्ल्ड में हम बनाते हैं, मगर कुछ दुख भी है। तो गांधी जी का वे ऑफ थिंकिंग है कि हम गांधी जी को हम भूल गए क्या? गांधी जी को भूल गए? गांधी जी तो ट्रैवल करते थे, तो ही यूज्ड टू और थर्ड क्लास रेलवे में ट्रैवल करते थे विथ नो गार्ड्स। उनके साथ कोई गार्ड भी नहीं होता था। उन्होंने गरीबों के लिए खुद उनके घर में जाके उन्होंने काम किया है। और वो पहले टर्बन यूज करते थे, तो टर्बन यूज करने के टाइम में उसको जो क्लॉथ्स होता है वो बहुत होता है, उसमें से काफी टोपी होती है और टोपी पहनते थे। और उनका जीवन जो अगर देखेंगे, वेरी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग थी। हम सब भूल गए, मुझे लगता है बहुत भूल गए। मुझे मेरा सौभाग्य है कि उनका दर्शन भी, मैं बहुत छोटा था, 4 साल का, तो मेरे बड़े भाई ने उनके साथ मुझे लेके गए थे, उनका दर्शन हो गया। मैं जो अभी काम कर रहा हूँ तो इट इज नथिंग दैट गांधी जी के सिद्धांत पर काम करता हूँ। एक तो है, गांधी जी ने बोला था कि सब आदमी को खुद का काम खुद करना मांगता है। एवरीथिंग ही हैज टू डू, नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। सो हम कितने लोग करते हैं? गांधी जी टॉयलेट भी साफ करते, सब काम करते थे।
और गांधी जी का जो पर्यावरण के लिए जो होता है वो काफी ये था पर्यावरण के लिए। एक सिंपल बात करता हूँ मैं। उनके पास एक पेंसिल थे, लिखने की पेंसिल थी, उसमें आधा टुकड़ा किधर तो रह गया था, तो उन्होंने बोला कहाँ है। तो अगर वो पेपर भी होता था, न्यूज़पेपर कुछ लेटर होता था, उसके पीछे लिखते थे। वो कितना सेविंग करते थे। और उन्होंने एक्चुअली फील्ड वर्क किया है। इतना फील्ड वर्क मेरे ख्याल से किसी ने भी नहीं किया। ये जो आदर्श है हम भूल गए। ये देखो गांधी जी ने, आज हम कोविड का ये करते हैं, अभी सब जगह कोविड का वजह से ये हो गया। गांधी जी ने कितने साल पहले साबरमती आश्रम में, जब वहाँ के लेप्रेसी पेशेंट थे, उनकी सेवा करने को शुरू किए। उनकी सेवा करने की परचुरी शास्त्री करके थे, उनकी सेवा खुद करते थे। अब अभी कोविड का ये बीमारी हो गया है, मुझे बोलो कितने लोग हम उनको पेशेंट को डायरेक्ट मदद करते हैं। हम भूल गए, हम सब भूल गए। गांधी जी ने बोला था हम सब एक है। हम क्या एक है? देखो मेरे घर में तो हमें बोलता है गांधी जी का जो ये था, हम वो खद्दी कपड़ा यूज करते थे। मेरे घर में जो सर्वेंट थे तो गांधी जी ने बोला था कि कंप्लीटली अछूत जो लोग थे और मेरे घर में रसोई बनाते थे। वी हैव फॉलोड एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी। एंड गांधी जी का हम सभी भूल गए। गांधी जी ने कितने स्टैचू बनाने को नहीं बोला था, आज हम स्टैचू बनाते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मगर हम गांधी जी को भूल गए। गांधी जी ने जो सेवा की है उसका फिर से हमको सोचना पड़ेगा। गांधी कितने कपड़े पहनते थे, क्या करते थे, आज हम क्या कर रहे हैं। आज हमारा जो नेता है वो, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबडी, तो एक नेता जाता है तो उसके पीछे 50 गाड़ियां जाती है। हाउ मच वी आर वेस्टिंग द मनी। हम कितना काम करते हैं। गांधी जी ने सेवा करने के लिए किसी का ऑनरियम नहीं लिया था, आज हम सब के लिए ऑनरियम लेते हैं। गांधी जी का प्रचार भी करने का तो उसको भी हमको स्पॉन्सरर मांगता है। स्वच्छता अभियान के लिए भी स्पॉन्सरर मांगता है। और जो स्पॉन्सर होता है, एम्बेसडर होता है, क्या उन्होंने गांधी जी से हाथ में झाड़ू लिया है, वो एम्बेसडर बन जाता है। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मगर हम भूल गए। और गांधी जी का तत्वज्ञान बहुत हमको ये करना पड़ेगा, फिर से गांधी जी का विचार करना पड़ेगा। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में मैं एक बात करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का जो लड़का अनिल है, वो मेरा खास दोस्त है। तो एक दफा वो सांगली में आया था, सरप्राइज, सेकंड प्राइम मिनिस्टर का लड़का सांगली में आया। नोबडी वाज नोइंग ही इज अ सन ऑफ महात्मा गांधी, दिस लाल बहादुर शास्त्री। और he was a manager working for the pharmaceutical industry for Tata Consultancy. किसी को पता नहीं था। तो मैंने देखा कि ये एक होटल में ठहरा था, मुझे किसी फ्रेंड ने बोला, मैंने उसको घर में लेके आया। तो जो टाटा को पता नहीं था कि गांधी जी का लाल बहादुर का लड़का मेरे पास सर्विस करता है। और यू सरप्राइज, उन्होंने एक स्टोरी मुझे बोली थी कि उनका जब भी वो स्कूल में पढ़ते थे तो एक दफा उनकी गाड़ी जी थी, गवर्नमेंट की गाड़ी लेके गए स्कूल के लिए, तो उनको बहुत गुस्सा आया। तो ऐसा है कि उन्होंने सेक्रेटरी को बोला कि कितना किलोमीटर हो गया, दैट आई एम गोइंग टू पे, इट इज नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। उनको लड़के बोल रहे थे अभी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हम गाड़ी लेंगे। तभी फिएट कार की कॉस्ट थी 12,000 रुपीज, 12,000, जस्ट इमेजिन। और बच्चे बोलने लगे। तो लाल बहादुर जी ने बोला क्या जरूरत है, मगर बहुत बच्चे पीछे पड़ने के बाद में उन्होंने बोला यस। तो उन्होंने उनके सेक्रेटरी को बोला कि मुझे लोन लेना है और आप अप्लाई करो। उनके पास बैंक अकाउंट पर 2,500 थे, खाली 2,500, और उन्होंने बैंक का लोन लेके गाड़ी खरीदी। एंड सेक्रेटरी सेड he got within 2 hours or 3 hours sanctioned the money, but he was very angry, you know। और उसके बाद में उसके बच्चे ने उसका पैसा भेज दिया। क्या हम फिर से मुझे बोलना पड़ेगा कि हमारा गांधी जी का जो है, गांधी जी जब भी पाकिस्तान का वॉर हो गया था तो उन्होंने बोला था कि एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे, क्या हम क्या कर सकते हैं। और मुझे ख्याल से फिर से
हमारे बच्चे को रियल गांधी कौन है, लाल बहादुर शास्त्री कौन है, वो हमको पढ़ाना पड़ेगा, उनके संस्कार देने पड़ेंगे। मॉडर्नाइजेशन तो है जरूर, मगर हमारी जो संस्कृति है बचाने के लिए मेरे ख्याल से उनके सब ख्याल करना मांगता है। और मैं नमन करता हूँ कि और मुझे एक खुशी भी होगी, जहाँ ब्रिटिश का राज चल रहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, सो आई एम वन ऑफ द लकी पर्सन। उसके पहले एक स्टोरी मांगता है, 1942 में जो अभी मूवमेंट हो गई थी, तो माय elder brother, he was present there and he saw that this thing, और हम बाद में वो सब भूमिगत हो गए। और भूमिगत जो लोग होते आते थे, वो मेरे फादर के घर में मदर सब उसको सिक्योरिटी में रखते थे, एंड दिस सब। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो, महात्मा गांधी पार्टीशन हो गया, तभी जो निर्वासित आ गए, रिफ्यूज आ गए, उनके लिए भी हमने काफी मदद की। और मैं भी जो सोशल वर्क करता हूँ ना किसी के पास कुछ लेके मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से गांधी जी का फिर से मैं नमन करके आज के सब आपका दिन, मेरे ख्याल से जो हम देश के लिए जो है उनको मत भूले, और देश की प्रगति के लिए हमको सबको काम करना पड़ेगा। जय महात्मा गांधी, जय लाल बहादुर, जय हिंद। Thank you very much, sir. And your words and actually your feelings also shows you are a very follower of the non-violence. Maybe in my 20s, a very radical thinking, like I'm a strong supporter of Marxism. And so that type of feelings, because Bhagat Singh and all these people, let us say, influenced their studies to a large extent. But let us say right now, after increasing the ages and different type of experiences, okay, we also becoming, let us say, cool personality. So because we cannot achieve anything with very strong, passive resistance methods, very strong methods. So that's why we are also becoming, let us say, this non-violence. And sir, I have seen for the last 9 months to Dr. Vijay Kumar Shah, in any program and everything, let us say, very calm mind, very calm personality. I think this is the reality of this non-violence attachment. That is a Gandhi Sanskar. Yes, sir. Gandhi Sanskar. Yes. So that's why. So directly, your family members involved with Gandhi. So that's why I think you received the fantastic feelings also in your mind. Yeah. Okay, thank you very much, Dr. Vijay Kumar Shah, sir. I want to say something. Yes. Dr. Varaprasad, you're also doing the seva by going and treating, like how Dr. Shah said, Vijay Kumar Sarji said, like to seva, to do the the seva, going there asking for nothing. You're going directly and treating the patients. It talks a lot, sir. You're also doing a great job. Ma'am, see, here it is. My philosophy is my direct philosophy. As a human being, I want to do something to my country or to my society. Anyway, I have to die. Yeah. Everyone must die. Now, for what should I, let us say, think in a different method? Is that clear or not? So I have a selfish method. What is that? It is, I'm a human being. That's why my fellow humans must be happy. Then only I'll be happy. This is my self-feeling part. So if any person is crying in front of me, so I'll feel a little bit of bad, because like Dr. Vijay Kumar Shah, my family members also, my grandparents' father is a freedom fighter. Maybe, Yeah. I don't know, because of some other reasons, let us say, from my childhood onwards, let us say, okay, that type of feelings. I already am telling that, okay, in my 20s and 25s, so very radical thinker, not ordinary. Okay, very, very powerful. Even till today also, I'm following the Marxism, because that Marxism is actually played a very important role for our discipline commitment towards the work. So later, let us say, after working in the civil services faculty for more than a decade, I studied almost all the things. Nothing is left in my mind. So that's why I covered from, okay, one corner to another corner. So all the things, because nearly 22 segments I used to teach for the UPSC candidates. I taught for more than a decade. So world history, polity, constitution, economy, whatnot, each and everything. That actually made me into a very cool person right now. That's why right now I'm understanding, okay, how Dr. Vijay Kumar Shah come to
our Dr. Ramakrishna Shah, all these people maintaining very calm and cool. How means, okay, now after maybe 15, 20 years after experience, we learned, and sirs, they learned from their family members from the childhood onwards. Yes, sir. Okay. And Sir, I would like to interfere in between. Why to compromise the life? Why to compromise the life? yes, sir. There's no use of fighting with the people. You Yes. just compromise. You Yes. will be happy yourself and other to make others also happy. Yes, Yeah, 50% thank you. of the life is over without knowing anything. Let me live happily and let me do, okay, something good for my society, and whatever my research part, each and everything, or come to this treatment part. So that gives immense satisfaction. So repeatedly we are saying that more than 40,000 of this COVID-19 people we treated without taking a single paise. Very good, very good. 200 members of doctors. We maintained 200 members of doctors. That gave immense satisfaction because we are giving the life. Is it clear? So right now, I don't have any fear to touch even a COVID-19 patient also, because we are treating number of people because by improving the immune system. So maybe this is a non-violence method. Maybe right now I am understanding, sir, after this COVID-19. Okay. And thank you very much, Dr. Ramakrishna sir. And now I am inviting Mr. Ramakrishna Aryalji and from United States of America. And please share your valuable words to our viewers. Please unmute your phone one time. Yeah, yes. जन्म उपलक्ष्य में बोलने का मौका मिला। अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम ऐसा प्रेरणा दिया, और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े प्रिय नेता थे। उन्होंने जय जवान जय किसान ऐसा नारा दिया। ऐसे विभूतियों को सम्मान करने का अवसर जन्म दिवस में सभी को शुभकामना। और भावनात्मक भाव ही विद्यते देवता, भावनाओं से ही सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, सबसे बड़ा पुण्य ही उपकार करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सभी प्राणियों को सुख मिले और अहिंसा के रास्ते पर चले, ऐसे ही प्रेरणा गांधी जी ने दिया। इस अवसर पर मैं एक भजन गाता हूँ। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही अंतर्यामी सबका स्वामी, तू ही अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही दाता विश्व विधाता, तू ही दाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही दाता विश्व विधाता, तू ही दाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, इस जगत के सारे काम। हे राम हे राम। Thank you very much, Mr. Ramakrishna Aryal, and this type of bhajans like our okay, father of the nation Gandhi very much. So in that we are saluting and we are giving the great things. And right now, after seeing, let us say, Shruti ma'am also, this is maybe the yearly for 5 to 6 programs I conducted. Ma'am also
very calm and cool. So I think you people directly came from the non-violence family members. So that's why freedom fighters. That's why you are maintaining very cool. So by observing that one, okay, I'm feeling very, very happy, ma'am. So please conclude this program, ma'am. Shruti Malay, ma'am, please conclude this program. थैंक यू डॉक्टर भारत। गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जितना कहते जाएं कम है। और सुनते हुए अभी जैसे डॉक्टर शाह बोल रहे थे कि उनके बारे में उन्होंने जितनी बातें कही, सुन ऐसा लग रहा था सुनते जाओ और मतलब ख़त्म ना हो। क्योंकि हमने अपने बचपन में बहुत, हम जहाँ पर डांस सीखने जाते थे, उसका स्कूल का नाम था लाजपत राय स्कूल करके, डॉक्टर लाला लाजपत राय के नाम से था वो स्कूल का नाम था। तो वहाँ पे उनकी मिसेस लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मिसेस थी ललिता शास्त्री जी, तो वो आती थी और हमेशा वो जब इलाहाबाद आए तो वो वहीं रुकती थी। तो हम लोग उस दिन फिर बहुत लेट नाइट घर आते थे और वो इतना प्यार करती थी हम लोगों को, इतना मतलब हम लोग उनके ही आसपास रहते थे, बच्चों से बहुत प्यार करती थी। और हमारे मम्मी पापा भी वो जब वो वहाँ रहती थी तो वो भी जाते थे, उनसे मिलते थे। इतनी सरल, बस उनके पास कुछ नहीं, उनके थोड़े से कपड़े की एक अटैची होती थी बैग, और एक लाल बहादुर शास्त्री जी का फोटो वो लेके रख देती थी मेज पे जब वो आती थी। और इतना सरल खान पान बिल्कुल जैसे मतलब बता नहीं सकते। आजकल तो के जो लोगों को हम देखते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता था कि कितने वो महान लोग थे। उनकी ज़रूरतें उन्होंने अपनी इतनी सीमित करके रखी हुई थी, तो उनसे हम लोगों ने बहुत शिक्षा ली, उनसे बहुत सीख के अपने ज़्यादा मतलब बहुत प्रसार करके और इस तरीके से बहुत नहीं रहना चाहिए, बस जितना ज़रूरत है। गांधी जी का ये था कि वो साबरमती नदी में जब नहाने जाते थे तो वो एक लोटा पानी लेकर के जितनी ज़रूरत होती थी उतने से जब वो नहाते थे तो कहते थे कि वो बस ये साबरमती इतनी बड़ी नदी है सबके लिए, ये मेरा बस इतना सही इनके इस पानी पर हक है और मैं उतना ही उपयोग करूँगा जितना मेरे लिए ज़रूरत है। तो ये सब आदर्श की बातें तो करने को कितनी भी कर लो, लेकिन सच असलियत तो क्या है कि चाहे बात करो एक बार ना करो, लेकिन उपयोग में लाओ। अगर आपने उपयोग में लाया तो वो ज़्यादा बड़ी बात है। बात करने से क्या है, बात तो करके तमाम मीटिंग्स होती हैं, तमाम वेबिनार्स होते हैं, सेमिनार, लेकिन बातें हम तो हमारे घर में जितने थे, मेरे बाबा, मेरे मतलब क्या किसका नाम गिना, सभी तो फ्रीडम फाइटर थे, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो हमने तो अपने बचपन में ऐसा माहौल ही देखा है कि इस तरीके से ही लोग रहते ही थे, बिल्कुल ज़रूरत भर। मेरे बाबा थे एमएलसी इलाहाबाद में, कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो उस समय में उनको 36 साइकिल में दी गई थी कांग्रेस वर्कर्स में बांटने के लिए। अब उस समय उस जमाने में, और उन्होंने एक भी साइकिल अपने घर पे नहीं रखी थी। अब मतलब हम लोगों पापा लोगों को दे सकते थे, बच्चे कई थे लड़के घर में दे सकते थे, लेकिन उन्होंने दी नहीं। पूरी की पूरी एक लिस्ट थी जिसके नाम की थी, उसको बांटी उन्होंने। और वो ईमानदारी के लिए इतने फेमस थे कि बहुत ही ईमानदार, इतना उनका व्यक्तित्व। तो ये सब हमने देखा है, तो सब गांधी जी की, लाल बहादुर शास्त्री जी की, सब इन लोगों की हम मतलब हमने तो चौधरी नौनिहाल सिंह जी इलाहाबाद में थे, इतने बहुत रॉयल फैमिली से आते थे, लेकिन बड़ा सादा जीवन था उनका भी, बहुत सादगी से रहते थे। तो ये सब जो देखा है तो वही उसी का ही असर जीवन पे है, और हम लोग वही अपनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ही, वो तो बहुत महान थे, हम लोग कोशिश करके कुछ उनके पास चिन्हों पे कोशिश करते हैं चलने की, फिर आगे अपने बच्चों में भी सोचते हैं कि ये गुण ट्रांसफर कर। दिन भर बताते रहते हैं कि ऐसे हम करते थे, तुम भी ऐसे करो, इस तरीके से कुछ तो अंश जाए, कुछ तो हम यही सोचते जाए। तो ये ज़रूरी ये है कि लोग उसको अमल में लाएं, उसको फॉलो करें, उसको प्रैक्टिकल में करें, तब जा कर के ये
गांधी जयंती मनाना सार्थक हुआ हम लोगों के लिए। बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, सुनना भी अच्छा लगता है, लेकिन करेंगे जब ना तो अंदर मन में और कॉन्फिडेंस भी आता है और अच्छी फीलिंग्स भी आती है कि हमने ये कम से कम ये किया, हमने किसी की हेल्प करी, तो अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आती है। भले अपने लिए एक बार ना हो, लेकिन अगर किसी की मदद आप करिए तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन फील होता है कि अब हम मतलब अंदर से संतुष्ट हैं। तो कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अब आप अपना और आगे कंटिन्यू करिए। Thank you very much, ma'am, and thank you very much everyone for participating in today's program, and thank you very much Shruti ma'am, thank you very much Dr. Vijay Kumar Shah, and thank you very much Mr. Ramakrishna Arya. And because of some other important works, some of our colleagues they left, no problem at all. So anyway, we are concluding this program with this the day of non-violence. Okay, the United Nations General Assembly adopted this day as the day of non-violence. Okay, we are concluding this program, and thank you very much once again, everyone.